Welcome to one and all to our 19th session today, and a very good morning to our family in the US. आज हमारे वीकेंड सेशन पे हमारे साथ है श्री लक्ष्मण कुमार सिंघवी जी, जो एक प्रोफेशनल है, and we both have something in common, that is Kalandri, which makes it even more special. जो मैंने प्रोफाइल में शेयर किया हुआ है, स्पेशली उनके बारे में मैं खास मेंशन करना चाहूंगा कि उनके जो ग्रैंडफादर थे, उन्होंने 1908 में संघ निकाला था, और उस पर्टिकुलर संघ में मैं कहना चाहूंगा कि उस वक्त जो करीब 112 साल के पहले वो संघ था खाली कालंदरी से केसरिया जी तक, जो आज उस जर्नी को 3 से 4 घंटा में अपन कर सकते हैं, बट उस टाइम में व्यवस्था के कारण कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन and arrangement, and there were 3,000 people in the Sangh, and it took almost 4 months. You can imagine the amount of preparation, the time it would have taken from the start till the Sangh is back. It has almost taken 4 months, and it was way back in 1908. So I'm really proud that this is something happened in the entire nearby or in that particular area. This was the first Sangh which was taken by Lakshman Singh's grandfather, and that was from Kalandri. So not only he is from the same village where we are very close neighbors. Probably we can see his house from our balcony or from our terrace. We're so close neighborhood. But anyhow, we haven't met much. जानते थे कि है Kalandri वाले है, but then now this is the occasion for both of us to meet. The speciality of today's session is the Jain way of life, and on the one side, Dr. Lakshman Singhvi जी जो एनफोर्समेंट डायरेक्ट में है, जो आपने कुछ गलत किया तो वो लोगों को सजा देते हैं, which is a very strict, all EDs become so strong now. And on the other side you have a Dr. Rajendra जी जो लोगों को अगर कोई गलत बिहेवियर से उनको सेव करते हैं, तो एक सजा देते हैं और एक सेव करते हैं, and this is the combination, and we all three from Kalandri, and of course as usual Neil bhai, and it has been a very tiring day, which because we try to bring the best on the Palitna live Bhav Puja tomorrow, which we will share shortly, and I will hand over to Dr. Rajendra and Lakshman Singhvi ji. Thank you. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. लक्ष्मण जी साहब को पहले फर्स्ट बार मिल रहा हूँ वर्चुअल मीटिंग. बहुत सुना था इनका नाम, बट हमारा काफी आना जाना नहीं होता है कालंदरी बिकॉज ऑफ आवर प्रोफेशनल सम कमिटमेंट्स, एंड दिस इज अ कोविड टाइम, बट द बेस्ट वे टू स्पेंड इन कोविड टाइम इज टू डू ऑल एक्टिविटीज. ऐसे आप काम करेंगे, सो वी लर्न मोर अबाउट रिलीजियन, especially the elder people in the family are very happy. My sister called up today, just now she called up that every day she's घर में एक हर रोज कुछ ना कुछ एक नया पॉइंट सीखने मिल रहा है. So my sisters are very happy. My youngest sister is the happiest one. She kept on calling me, but I had some commitments. I had medical talks, webinars. Now everybody is doing webinar. Everybody wants to share your experience of सब कुछ experience जाना चाहते हैं. Today also I had a webinar. Then today it was quite a busy day. It took me almost 20 hours to prepare for a webinar. But anyhow, to cut it short, let us start the program. And I have heard a lot about Neil Shah. Lakshman Saab, you can start your this thing, and probably if something is there in between, we can just keep some add points. Yes. I don't have much financial background. I don't know much about taxes and all these things, but whatever little knowledge actually help a lot of my cardiology colleagues in taxation in our hospital. So if anybody has a tax problem, they contact me. So I learn more from you also on this today. Tax की बात नहीं करने का है. So I just need to mention before Lakshman Singhvi ji starts, the speciality of these two personalities is, and the topic is the Jain way of living, and these two people are professionals, which we see very rarely, because most of the Jains you see entrepreneurs. Of course, professionals are also entrepreneurs, but they have lived both of their life as professional, and that they will bring a different way of looking at it, things, the Jain way of living in the professional life, probably. Shri Ramesh ji, Neil bhai, Dr. Rajendra ji, एवं प्रिय श्रोतागण, आप सबको मेरा जय जिनेंद्र. सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि न तो मैं कोई जैन धर्म का विद्वान हूँ,
और न ही कोई बड़ा साधक, फिर भी आपसे कुछ बातें करने का दुस्साहस कर रहा हूं, इसलिए हो सकता है कि मेरी कोई बात शास्त्र संगत नहीं हो, कोई मेरी बात तर्क संगत नहीं हो और आपकी भावना को ठेस पहुंचाए, तो मैं आपसे यह विनंती करता हूं कि आप मुझे क्षमा करें। जैन धर्म एक प्राचीन और महान धर्म तो है ही, जो कोई भी वैज्ञानिक मापदंड पर खरा उतरता है, पर मेरा मानना है कि ये एक सुदृढ़ जीवन प्रणाली भी है। 84 लाख जीवों में हम लोगों को यह सौभाग्य मिला है कि हम मनुष्य की तरह जन्म लिए हैं, और जब यह सौभाग्य मिला है तो हमारी जिम्मेदारी भी बनती है, हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हम इस जीवन को सुंदर, सफल, सार्थक और आध्यात्म प्रेरित बनाएं। पर प्रश्न ये उठता है कैसे? तो भगवान महावीर से स्टार्ट करने के बिना चल नहीं सकता। भगवान महावीर ने आज से 2500 वर्ष पहले, जब आप सोच सकते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और सब तरह की क्या स्थितियां थी, इतनी विषमताएं थी, कुछ वर्गों को किसी भी तरह का अधिकार नहीं था, स्त्रियों को कोई अधिकार नहीं थे, उनको एक तरह का कमोडिटीज माना जाता था, इतनी कुरीतियां थी, इतने अंधविश्वास थे, यज्ञ, लोग पराडमुख थे। उस समय इस क्रांतिकारी युगों युगा के दृष्टा भगवान महावीर ने ये कहा कि आपको किसी के ऊपर भी निर्भर होने की जरूरत नहीं है, आप इंडिपेंडेंट हैं, आपकी आत्मा इतनी कैपेबल है कि वो आपको किसी भी पथ पे ले जा सकती है और आप मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही ईश्वर है। यह संदेश उन्होंने उस समय दिया और हमको स्वावलंबन, आत्मविश्वास, आत्मकल्याण और प्रगति का एक रास्ता बताया। अब ये रास्ता क्या है, उसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर आप पूरा जैन के मेन प्रिंसिपल्स का फ्रेमवर्क देखो और उसको थोड़ा समझो, तो एक फॉर्मूले की तरह उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, एक फॉर्मूले की तरह आगे चलता है। अगर मैं मैथमेटिक्स का आदमी होता तो मैं फॉर्मूला बना के शायद समझा देता, पर पहले बात करते हैं अपन मूल सिद्धांत की, जिसको हम महाव्रत और अणुव्रत भी कहते हैं। दोनों में भेद किया गया है। महाव्रत साधुओं के लिए, संतों के लिए है, और अणुव्रत गृहस्थी और श्रावकों के लिए है। और भेद जरूरी भी था, क्योंकि श्रावक और गृहस्थी कई तरह के कार्य उनको करना पड़ता है, अर्थ, मोक्ष, काम, गृहस्थी, इसलिए उसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी देना बहुत जरूरी था, जो दी गई है, जो आप समय काल के अनुसार फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं। अब ये मूल सिद्धांत सभी जानते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। और अगर आप देखें तो अहिंसा मेन सिद्धांत है और बाकी सब उसके एक तरह से उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आप अहिंसा के कॉन्सेप्ट को हम अच्छी तरह समझ लें, उसके मर्म को समझ लें, तो समझ लीजिए कि आपने काफी कुछ समझ लिया है। और जब अहिंसा की बात करते हैं तो बात आती है करुणा की, प्रेम भाव की, मैत्री भाव की, कंपैशन जिसे कहते हैं। और जैन धर्म का आधार ही है करुणा, प्रेम भाव। आपको सबको पार्श्वनाथ भगवान की, नेमिनाथ भगवान की कहानियां मालूम है कि किस तरह से करुणा भाव जब उनमें जागृत हुआ, वो कैवल्य की ओर बढ़े और कैवल्य प्राप्त किया। अब जब हिंसा की बात आती है या अहिंसा की बात आती है, तो सिर्फ ऊपरी सतह की हिंसा की बात नहीं है कि आपने किसी को मार दिया, किसी की जान ले ली, किसी का कुछ इंजरी कर दी। हिंसा जब बात करते हैं या अहिंसा की बात करते हैं, तो आप मन, वचन और काया की हिंसा या अहिंसा की बात करते हैं।
मन से कुछ सोचा हुआ या मन से अगर आपने किसी के बारे में खराब सोचा तो वो भी एक हिंसा है। वचन से आपने ऐसा कुछ बोला जिसमें दूसरे जीव को खराब लगा, आपको भी खराब लगेगा, तो वो भी हिंसा है। इस सब के पीछे जीव तत्व है। और महावीर ने ये कहा कि सब जीवों में एक सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, एक चेतना है जो मेरे जीव में भी है, आपके जीव में भी है, और एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय उन जीवों में भी है। और वो चेतना है, वो कॉमन है। और जब चेतना एक ही है दूसरे जीवों की और हमारी, उनको भी वही सब होता है जो हमको होता है, उनको भी पीड़ा होती है, हमको भी पीड़ा होती है। तो जब एक मान लेते हैं तो हम उनके ऊपर हिंसा करने के पहले कई बार सोचेंगे, अगर ये कॉन्सेप्ट अपन को समझ में आ जाए। हमारे जैन धर्म का जो प्रतीक है उसमें भी साफ लिखा हुआ है, परस्परोपग्रहो जीवानाम। सब जीव एक दूसरे ऊपर आधारित है, सबकी कनेक्टिविटी है। इसलिए अहिंसा का आशय इस पृष्ठभूमि में समझना जरूरी है। दूसरा एस्पेक्ट है कि हमारे अंदर कई तरह के कषाय होते हैं। क्रोध होता है, लोभ होता है, दम्भ होता है, संचय करने की प्रवृत्ति होती है, आसक्ति होती है। ये सब भी किसी न किसी तरह हिंसा को जन्म देते हैं। और वही अहिंसा और हिंसा और अहिंसा का सिद्धांत आगे आ जाता है। फिर आते हैं हम कर्मवाद में। कर्मवाद में हम कहते हैं कि जो कर्म आप करते हैं उसका बंध या अनुबंध, या जो कर्म की जो पूरी थ्योरी है उसको समझाना तो कई बहुत ही स्कॉलर्स कर सकते हैं और वो भी उनको काफी टाइम लगेगा। बट जो कर्मवाद में पाप और पुण्य का जो है, हिंसा अहिंसा का है, वो भी सब भाव पर निर्भर है। भाव की इसमें बहुत इंपॉर्टेंस है। भाव के बेसिस पे एक कृत्य हिंसा भी गिना जा सकता है और शायद वो अहिंसा के नजदीक भी आ सकता है। उसमें रिलेटिविटी है। ये सब सापेक्ष चीजें हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट एक है वो है जिसे हम कहते हैं रत्नत्रयी, त्रिरत्न भी कहते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। उसमें इंपॉर्टेंट है सम्यक, राइट, सही, दर्शन, ज्ञान, चरित्र। पर अगर वो सम्यक नहीं है, अगर उसमें मिथ्या का तत्व आ गया, उसमें कुछ गलत धारणाएं आ गई, उसमें गलत सोच आ गई, तो भी वो सही नहीं होगा। इसलिए सम्यक्त्व की पहचान करना जैन धर्म का वो भी एक मूल है। और सम्यक्त्व की पहचान कैसे करें, उसके लिए आपको कुछ प्रोसेसेस के थ्रू जाना है। आपको तत्व पहचान होना है, आपको जीव की पहचान करने की कोशिश करनी है, आपको अपने कषायों से मुक्ति करने की कोशिश करनी है, आपको अहिंसा के सिद्धांत को पहचानने की जरूरत है, आपको सुख दुख में संभाव रखना है, जिसे गीता में स्थिर प्रज्ञ कहा गया है। जब आप ये सब करेंगे तभी आप सम्यक्त्व की तरफ बढ़ पाएंगे। फिर उसमें उचित आहार भी इंपॉर्टेंट है। आहार है, फास्टिंग है, उपवास है, व्रत है। और ये सब चीजें उनके दो पहलू है। आध्यात्मिक तो है ही, क्योंकि अगर आध्यात्मिक पहलू नहीं होता तो उसका धर्म के उसमें कोई मतलब नहीं था। आहार के नियंत्रण से, किस तरह का आहार लेते हैं, आपके अंदर एक डिसिप्लिन आता है और आप आध्यात्मिक चीजों के लिए तैयार होते हैं। और आहार का स्वास्थ्य का दृष्टिकोण तो है ही। अब आहार कैसा हो, अगर मोटे तौर से कहें तो आहार उचित होना है, आहार अहिंसक होना है, आहार समय पर होना है, आहार सिर्फ स्वाद के लिए नहीं होना है। बाकी तो कई तरह की फैट्स डॉक्टर साहब बताएंगे चलती रहती है। वीगन की बात करते हैं अपन, उसमें भी कोई शायद गलत नहीं है। इसी तरह से आप कोई इंटरवल फास्टिंग की बात करते हैं, कोई कहते हैं 2-2 घंटे में आप खाइए, तो हर तरह की चीज है। पर मोटी बात यह है कि आहार में आपको सात्विकता रख के, आपको अहिंसा की भावना रख के, आपको समय पर नियंत्रण से, डिसिप्लिन से खाने का है। फिर दूसरा आता है मेडिटेशन, ध्यान। वो भी इतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ये सब करके अगर ध्यान करके एक सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ नहीं बढ़ेंगे, आप में एक अंतर्दृष्टि नहीं आएगी, तो भी आप सम्यक तत्व की पहचान नहीं कर सकते। तो ये सब चीजें, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप ये सब चीजें अचीव कर दो तभी आप में सम्यक्त्व आएगा। तब तो फिर मेरे ख्याल से कब तक वेट करना पड़ेगा या आएगा भी नहीं।
अगर आप उस पथ पर अग्रसर हो गए, आपने ये सब सोचना, आपने उसको प्रैक्टिस करना, आपने उसका स्वाध्याय करना और करना शुरू कर दिया, तब आपने अपने आप ही वो अंतर्दृष्टि का थोड़ा थोड़ा विकास शुरू हो जाएगा, एक नई ऊर्जा आएगी और आप एक सही दिशा की तरफ बढ़ सकेंगे। जब ये सब हो जाता है तो फिर आपको हर जीव में ईश्वरत्व दिखता है, आपको सब जीवों से प्रेम और मैत्री भाव अपने आप ही होने लगता है। इसको एक अंग्रेजी के 18वीं शताब्दी के कवि विलियम ब्लेक हुआ करते थे, उन्होंने बहुत सुंदर पंक्तियों में व्यक्त किया है। टू सी अ वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड एंड अ हेवन इन अ वाइल्ड फ्लावर, होल्ड इंफिनिटी इन द पाम ऑफ योर हैंड एंड इटर्निटी इन एन आवर। ये पंक्तियां यही बताती है, इसमें भाव यही है कि डिविनिटी और ईश्वरत्व विश्व के हर जीव में, संसार की हर सृष्टि में, यूनिवर्स में व्याप्त है। जब यह अनुभूति होने लगती है तो आप स्वयं का कल्याण तो कर ही सकते हैं, पर आपको दूसरों का कल्याण करने की भावना भी पनपती है। इसलिए हमारे बृहद शांति स्तोत्र में कहा है, शिवमस्तु सर्व जगतः परहित निरता भवन्तु भूतगणा, दोषा पर्यान्तु नाशम, सर्वत्र सुखी भवतु लोकाः। आप अपने कल्याण की नहीं, आप सब जीवों के कल्याण की बात करते हैं, पूरे विश्व के कल्याण की बात करते हैं। अब ये तो एक बेसिक फ्रेमवर्क है, उसको जितना गहराई से समझें उसकी कोई कमी नहीं है, आप बहुत गहरे जा सकते हैं। पर मैं तो ये कहता हूं कि अगर इसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाए, आपको उसका एक सेंस आ जाए, आपकी उसकी एक दृष्टि डेवलप हो जाए, तो भी आपके जीवन में वो एक इतना कायाकल्प करेगा कि आपको खुद मालूम नहीं पड़ेगा कि क्या से क्या हो रहा है। आप एक अलग ही दिशा की तरफ चले जाएंगे, आप हर चीज में सोचेंगे, आप कुछ भी कृत्य करने से पहले आप विचार करेंगे। अब कई बार ये कहा जाता है कि जैन धर्म एक पलायनवादी धर्म है, एस्केपिज्म, निवृत्ति का धर्म है, पर मैं तो ये कहता हूं कि जैन धर्म पुरुषार्थ का धर्म है। इस तरह से आत्मबल को बढ़ाना, इस तरह से अंतर्दृष्टि को विकसित करना कोई निर्भीक लोगों का काम नहीं, कोई भयभीत लोगों का काम नहीं है। ये उन लोगों का भी काम नहीं है जो एस्केपिस्ट हैं, ये उन लोगों का काम है जो एक पॉजिटिव शक्ति को डेवलप करके उसको कर सकते हैं। और हमारे सामने इसका जीवंत उदाहरण है, उससे बड़ा कोई उदाहरण हो नहीं सकता। महात्मा गांधी ने श्रीमद राजचंद्र से अहिंसा की बातें, अहिंसा की मीमांसा, अहिंसा के बारे में इतना जाना, और गांधी जी ने उस अहिंसा के प्रयोग को किस तरह यूज किया, किस क्रांतिकारी तरीके से किया। उन्होंने राष्ट्र को आजाद कराया, उसने पूरे विश्व को अहिंसा का संदेश दे दिया। तो उसको कहना कि जैन धर्म पुरुषार्थ का धर्म नहीं है, जैन धर्म पॉजिटिविटी का धर्म नहीं है, उसका कोई बेसिस नहीं है। अब ऐसे तो जैन होने के नाते सदियों की हमारी जीवन प्रणाली से हमारे अंदर कुछ संस्कार तो स्वतः ही आ गए, और ये हमारा सौभाग्य है। कल्याण की भावना, प्रेम की भावना, जीव दया, ये सब बातें तो प्रोग्राम्ड है। जैसे कि कुछ हमारा पार्टी हो गई है, कोई ऐसे लोग होंगे जिनको ये नहीं होता है। इसलिए आप देखेंगे कितने ही व्यक्ति, कितनी संस्थाएं, कितना चैरिटी का, जीव दया का काम करती है। अब जब ये कोविड की स्थिति है, हम जानते हैं कि लाखों लोगों को, और मैं तो कहता हूं लाखों नहीं, सब जगह पूरे आप भारतवर्ष में लेंगे तो करोड़ों को वो भोजन की व्यवस्था करते हैं, दूसरी तरह से मदद करते हैं। ये सब जैन संस्कारों में है। मिच्छामि दुक्कडम की एक आप जो परंपरा है उसको आप देखिए, हर जैन मिच्छामि दुक्कडम करता है। और मिच्छामि दुक्कडम आप जानते ही है, भावना ये है कि आपने किसी का गलत किया हो, कोई भी उसके साथ में दुष्कर्म किया हो, उस सबको भुलाना और माफी मांगना।
पर ये सिर्फ आप जब मिच्छामि दुक्कडम कहते हैं तो आप उसी से वो नहीं कर रहे, आप अपने आप को भी एक तरह की माफी दे रहे हैं। बिकॉज अगर आपने कुछ किया है तो वो आपकी आत्मा के अंदर, कॉन्शियस के अंदर रहने वाला है। इसलिए वर्ल्ड ओवर फॉरगिवनेस का जो कॉन्सेप्ट है उसकी थेरापेटिक वैल्यू भी बहुत है। उसको मानते हैं कि ये आप अगर मन से, भावना से किसी को मिच्छामि दुक्कडम कह दो तो, पर ये है कि आजकल कई बार ये मैकेनिकल रूप में यूज किया जाता है, कार्डों के अंदर यूज किया जाता है, ग्रुप व्हाट्सएप में यूज किया जाता है। पर प्रश्न ये है कि अगर इसको सही ढंग से यूज किया जाए और रियली हृदय से यूज किया जाए तो इसके जो रिजल्ट हैं हमारे जीवन में एक नया ही स्वरूप दे सकते हैं। संस्कार छोटे छोटे कई है ऐसे। आप देखेंगे सुबह चाय बनाने के लिए कभी उठ के आप बर्तन में पानी गर्म करते हैं और फिर उसको अगर गर्म बर्तन को नीचे धरातल पर रखते हैं तो पहले एकदम हमारे विचार में, दिमाग में आ जाता है कि कहीं इसमें जीव हत्या तो नहीं होती, और हम नीचे नहीं रखेंगे उसको। आप वॉक कर रहे हैं, आपके सामने छोटी सी छोटी चींटी भी दिख जाए तो आप उसको कॉन्शियसली अवॉइड करेंगे। ये हमारे सब संस्कारों की बात है। क्या जिस तरह से ये हमारा सब प्रोग्राम्ड है, कि हम एक और प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हैं? हमारे में जो कषाय है, क्रोध, लोभ, जो भी है, नील भाई ने निश्चय निश्चय पचकांड का बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया था। तो मैं कहता हूं कि क्यों नहीं हम ये परंपरा स्टार्ट करें कि आप क्रोध का निश्चय करो, आप लोभ का निश्चय करो, भले 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, पर आप करते जाएंगे तो शायद वो भी आपका प्रोग्रामिंग में बैठ जाए। और मैं तो कहता हूं वो भी अगर आपको, अगर अपने आप के ऊपर विश्वास नहीं है तो पचकांड ही ले लो। आहार का पचकांड लेते हैं तो कषायों का पचकांड भी ले लो, तो शायद उससे और भी हमको हमारे जीवन में कुछ चार चांद लग सकते हैं। अब अनेकांतवाद, अनेकांतवाद तो इतना सुंदर एक जैन धर्म का सिद्धांत है कि उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। उस दिन डॉक्टर बोधा ने भी अनेकांतवाद के बारे में बात की थी। अनेकांतवाद तो हमारे व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, व्यावसायिक जीवन में एक नया ही स्वरूप लाके एक नई राह दिखा देता है। आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को लो, आप टीम वर्क की बात करते हैं, टीम वर्क। अब टीम वर्क कैसे करेंगे अगर आप अनेकांतवाद की थ्योरी को नहीं अपनाएंगे? क्योंकि सबके ओपिनियंस तो अलग होंगे, उनको आपका समन्वय करना है। ट्रूथ कभी एब्सोल्यूट नहीं होता है। कोई भी चीज राइट या रॉन्ग समय, काल, परिस्थिति, कई एस्पेक्ट्स पे डिपेंड करती है। इसलिए अनेकांतवाद का महत्व और भी बढ़ जाता है। अब अनेकांतवाद की जरूरत कई चीजों के लिए है। समाज में कई बार डिवाइजिव टेंडेंसी होती है। अगर हम अनेकांतवाद को अपनाएं तो उन सब चीजों को रिकंसाइल करके हम एक बहुत संतुलित रूप से आगे बढ़ सकते हैं। घर के अंदर, परिवार के अंदर लोग किसी बात लेके पेड़ी की पेड़ी खत्म कर देते हैं लड़ने झगड़ने में। कई हम खुद ऐसे उदाहरण जानते हैं, एक पेड़ी नहीं, आई नो दो 3 पेड़ियां भी खत्म हो गई है। कुछ बातें पकड़ ली, उसको चले जा रहे। मुझे खुद मालूम है 3-4 पेड़ी तक चल रहा है। अगर अनेकांतवादी जैसी चीज को हम समझ लें और जैन धर्म की जो प्रभावना है उस चीज को समझ लें कि ये इतनी अच्छी चीजें हमको दी हुई है, तो शायद इनमें से बहुत सारी चीजें ठीक हो सकती है। अब बात रही अपरिग्रह। अपरिग्रह क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि ग्रीड होती है। अपरिग्रह का मतलब नहीं कि, ये मतलब भी नहीं है कि आप कुछ भी नहीं रखना है। आपको जरूरत की चीजें आप रखेंगे भी, आपको धन भी रखना पड़ेगा, अर्थ भी रखना पड़ेगा। पर पॉइंट है कि कौन सी बाउंड्री लाइन, ग्रीड की क्या सीमा होगी और ग्रीड किस डायरेक्शन में जाएगी। अर्थ का अर्जन तो बहुत जरूरी है। अगर अर्थ का अर्जन नहीं करेंगे तो हम हमारी जिम्मेदारियां कैसे निभाएंगे, अच्छे काम कैसे करेंगे, जीव दया कैसे करेंगे?
तो अर्थ अर्जन करना तो बहुत ही जरूरी है, पर पॉइंट ये है कि उस ग्रीड की लिमिट को हम कहाँ रखें। तो ग्रीड की लिमिट को नहीं रखने से जो समाज में इम्बैलेंस हो जाता है, मुझे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से कई जैन लोगों का मुझे मालूम है जिन्होंने एक्सेसिव ग्रीड में आकर स्टॉक मार्केट में पॉन्जी स्कीम्स चला के फ्रॉड्स करके धन अर्जित करने की कोशिश की। अल्टीमेटली उनका तो नुकसान हुआ ही, पर उन्होंने समाज में कितने लोगों का नुकसान किया और जैन धर्म की महिमा के ऊपर एक आंच लगाई। तो ये सब कुछ कंट्रोल करने की जरूरत है और ये रियलाइज करने की जरूरत है कि अगर आप बिजनेस का जो रिक्वायरमेंट है, कुछ चीजें होगी। मैं तो कहता हूं कि आप टैक्स का भी कुछ अवेयरनेस कर लेंगे, पर दोज आर ऑल रूल्स लॉज मेड बाय मैन, दे आर रूल्स मेड बाय गवर्नमेंट। बट कुछ ऐसे रूल्स हैं जो एक तरह से ईश्वर ने बनाए हैं। कुछ चीजें गलत है, मर्डर है तो गलत है। अगर आप जानबूझ के मानवता का, समाज का नुकसान करते हैं और ऐसी एक्टिविटी में इंडल्ज कर रहे हैं, ऐसी एक्टिविटी से आप पैसा कमाना चाहते हैं, तो वो गलत है। तो एक क्रेडिबिलिटी का इश्यू आ जाता है, क्योंकि ये एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। आप कहते हैं पुण्य से अर्जित द्रव्य, आप पुण्य में करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पाप से अर्जित द्रव्य पाप में करते तो बहुत खराब बात है। पर एक जो बॉर्डरलाइन इश्यू है, वो पाप से अर्जित द्रव्य आप पुण्य में लगाते हैं। अच्छी बात है, द्रव्य की तो जरूरत है और लगाना भी है, पर एक थोड़ा सा विचारणीय विषय वहां आता है कि आप पाप से अर्जित धन को, द्रव्य को पुण्य में लगा रहे हैं तो चुपचाप लगा दीजिए। अगर उसको नाम के साथ आप लगा रहे हैं तो उसमें जो एक इमेज क्रिएट होती है, वो यंगर जनरेशन को एक उनके मन में एक अलग तरह का भाव आता है, देखने वालों में एक अलग तरह का मन भाव आता है। जो आउटसाइड जैन है उनको एक अलग तरह का भाव आता है। और जो हम इतनी अच्छी चीजें करते हैं, कोई कहता है अरे आप क्या बात करते हो, वो आपने उनका बड़ा नाम लगा दिया, वो क्या करते थे आपको मालूम नहीं है। तो ये सब एक विचारणीय विषय है। किसी की हम वो दुराग्रह से भी नहीं कह रहे हैं, क्योंकि इसमें कहने में भी एक करुणा का भाव है, उस भाव से ही कह रहे हैं। अब दूसरा, आजकल मानसिक तनाव बहुत बढ़ रहा है, खास करके यंगर जनरेशन में। इंफॉर्मेशन गलत हो रहा है, टेक्नोलॉजी की वजह से इतनी इंफॉर्मेशन आ रही है, फेक न्यूज आ रही है, व्हाट्सएप आ रहे हैं, फॉल्स न्यूज आ रही है, दुष्प्रचार हो रहा है। उस सब में से बचने के लिए आपको अपनी जीवन प्रणाली को कुछ सिद्धांतों पे चलानी होगी। लक्ष्मण जी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा डॉक्टर राजेंद्र जी से। जैसे आपने काफी ऐसा मत पूछ लेना कि उसका जवाब भी आपको ही देना पड़े। नहीं, बहुत अच्छा लगा जैसे आपने जिस तरह जैनिज्म के प्रिंसिपल्स टच किए कि हमारे डे टू डे लाइफ को कितने यूजफुल हो सकते हैं। हमारे साथ पैनल पे डॉक्टर राजेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं, तो मैं राजेंद्र जी से प्रश्न करना चाहूंगा कि जैसे इन्होंने कषायों की बात की, क्रोध, मान, माया, लोभ, तो क्या हेल्थ के साथ ये सब संबंध रखते हैं? जैसे कि आप कार्डियोलॉजिस्ट हो, सो थोड़ा हमें इसके ऊपर भी एनलाइटन करिए। या जैसे मेडिसिन में 3 टाइप के पर्सनल बिहेवियर को किया है, टाइप ए पर्सनालिटी, टाइप बी पर्सनालिटी, टाइप सी पर्सनालिटी। टाइप ए पर्सनालिटी जो अग्रेसिव रहते हैं, ऑलवेज वांट टू बी अहेड, सबके सामने होना चाहते हैं, दे वांट टू बी द फर्स्ट इन एवरीथिंग, दैट्स कॉल्ड टाइप ए पर्सनालिटी। एंड anything cardiovascular disease related to cardiovascular means heart या brain, anything related to blood supply, तो इफेक्ट होता है। सो ये जो क्रोध है, टाइप ए पर्सनालिटी, अग्रेसिव बिहेवियर है, दोज पीपल आर मोर प्रोन फॉर हार्ट अटैक्स, स्टडीज से बताया गया है। एंड दैट्स व्हाई नाउ लॉट ऑफ डाटा आ रहा है अभी इंडिया, अनफॉर्चुनेटली
अपने पास सब प्रकार के चीज है, जैसे लक्ष्मण जी ने बताया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग ये अभी से नहीं है, बहुत दिन से। मेरा मम्मी कभी भी बोलते राजू के घर में तो रात को खाना खाते, बट दैट वाज माय प्रोफेशन, आई कांट हेल्प। बट अभी अमेरिकन एंड ऑल दे प्रूव्ड इट। इसमें जैसे साइंस है, लाइक फॉर मी टू एक्सेप्ट एनीथिंग दे हैव टू प्रूव कि 100 लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे, 100 लोग नहीं करेंगे, 2 साल उनको फॉलो अप करेंगे, साइंटिफिक रहेगा, ब्लाइंडेड रहेगा, किसी को नहीं मालूम होगा। दिस आर ऑल वी यूज द वर्ड ब्लाइंडेड, रैंडमाइज। सो ये जो पढ़े लिखे लोग हैं आजकल के, दे वांट ऑल दिस डाटा। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में किसी ने इस पे इन्वेस्ट नहीं किया। सो जब भी ये इन्वेस्ट किया then the data came, अभी everybody is doing intermittent fasting, रात का भोजन बंद कर दिया lot of people। पर आप जैसे कह रहे हो कि इंडिया में किसी ने ये रिसर्च नहीं किया, फाइंड आउट नहीं किया, पर जैसे कि हम देखते हैं कि महावीर स्वामी ने जितने प्रिंसिपल बताया है उसके अंदर एक व्यासना का कॉन्सेप्ट आता है। सो क्या ये व्यासना का कॉन्सेप्ट हम इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ रिलेट कर सकते हैं? डेफिनेटली। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सी वी जैसे एलोपैथी है, एलोपैथी है, आयुर्वेदा है। यू बिलीव इन आयुर्वेदा, आई बिलीव इन एलोपैथी। व्हाई आई बिलीव इन एलोपैथी? बिकॉज पैरासिटामोल 100 पेशेंट को बुखार वाले को दिया, पैरासिटामोल 100 पेशेंट बुखार वाले को नहीं दिया, तो जो पैरासिटामोल 100 पेशेंट को नहीं दिया वो तड़पे गए, बुखार कम नहीं हुआ। सिमिलरली आयुर्वेद में ऐसा नहीं किया। आयुर्वेद में किसने, एक महान व्यक्ति ने किया, बोला कि 100 पेशेंट्स को पैरासिटामोल दिया, 100 अच्छे हो गए। बट हम जो एलोपैथी में है, साइंस में क्या होता है, तुलना करनी पड़ती है, 2 ग्रुप बनाने पड़ते हैं। 2 ग्रुप बना के इसको पैरासिटामोल देंगे, इसको नहीं देंगे। जैसे मैंने कहा इंटरमिटेंट फास्टिंग, उसका आर्टिकल न्यू इंग्लैंड जर्नल मेडिसिन में पब्लिश हो गया। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन इज कंसिडर्ड एज कुरान फॉर डॉक्टर्स और वॉट एवर यू कॉल, इस भगवद गीता। अगर उसमें कुछ आ गया, एवरीबडी नोस इट्स एक्सेप्टेबल। सो उसमें यही किया उन्होंने। एक ग्रुप को बोला है फर्स्ट 1 वीक यू डू 8 hours 10 hours fasting, 1 month, 5 days in a week. Then they did 12 hours fasting, then they did 14 hours fasting, then they did 16 hours fasting. 5th week में they told all the 7 days 16 hours fasting, and इन्होंने इनको फॉलो अप किया। मीन्स फॉलो अप कैसे किया? अगर 200 पेशेंट है स्टडी में, 200 भी कहीं नहीं गए, कहीं दे टेस्ट हिम आउट, उनके घर जाके पूछा गया कि आप कैसे हो, टेस्ट लिए, एंड दे फाउंड आउट सम ऑफ द कैंसर डिसअपियर, अल्जीमर्स कम हो गया, some malignancies disappear, diabetes went off, hypertension went off, number of cardiac events came down. So this came just 6 months back. So till 6 months back, everybody was telling, whole world was telling कि intermittent fasting करो, रात का भोजन मत करो। समझो कि intermittent fasting, how I tell my patient is, सुबह 8 बजे खाना खाओ, रात को 6 बजे खाना खाओ, बाद में मत खाओ। So I tell first you start 8 to 8, so 12 घंटे का fasting हो गया 1 month. Then I tell 8 to 6, so 14 घंटा का fasting हो गया. Then I tell 8 to 4, then 16 घंटा का fasting हो गया. So that 16 घंटा fasting is ultimate one. You build it over a period of 4 months. So this is what our science says. But मेरी मम्मी बचपन से बोलती है, राजू रे घरे रात्रा खाए. I make you, that's I can't help because my profession is like that. I have odd hours and I am in hospital stuff. But that's a very good thing, and we are also trying to follow to a lot of extent. So that's the difference. I'm not telling that Mahavir Swami Bhagavan ne nahi bola. See, my sister keeps on telling. In fact, 2004 एक छोटा प्रयत्न किया था मैंने कि चौवियर वाले का डाटा कलेक्ट करेंगे हैदराबाद, मेरे हॉस्पिटल के अराउंड. सो वी 600 लोगों का डाटा कलेक्ट किया, एंड दैट डाटा आई चेक्ड चौवियर जो करते हैं या जो नहीं करते हैं, उनका सैंपल लिया. वी वांटेड टू चेक हार्ट डिसीज देयर नॉट, बट बाद में वो छोड़ दिया बिकॉज इट्स नॉट इजी टू डू दिस टाइप ऑफ स्टडीज. द मनी इन्वॉल्व मीन्स द फाइनेंस मीन्स इतना पैसा खर्चा होता है. जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको एक स्टडी करना पड़ेगा, इट विल कॉस्ट यू 10 crore rupees. So who will invest the 10 crore rupees in a where there is no commercial value unless some university grants comes, they do it. So if all the things are accepted, रात्रि भोजन नहीं है,
don't eat too much food, as you said, vyasana करना है, they're all good. And other thing is, जैसे आपने बोलते हैं ना, आठम चौदस को उपास करो, that is also very good. That's all now everybody is following in the world and people are doing it. So they have to have some science. Unless there is some science, people will not believe it, at least the new generation. यानी बहुत अच्छा आपने बताया कि जैनिज्म में जैसे तिथि का कॉन्सेप्ट है, पांचम आठम चौदस जो फॉलो होती है, सो उसमें भी कहीं ना कहीं पर्टिकुलर दिन के बाद यानी पर्टिकुलर नंबर ऑफ डेज के बाद आपको फास्ट करना, जिससे आपका हेल्थ भी अच्छा रह सके और साथ ही साथ आप आध्यात्मिकता की ओर भी आगे बढ़ सके। तो ये आपने बहुत ही अच्छा बताया, जैसे व्यासना का कॉन्सेप्ट हो गया, रात्रि भोजन का कॉन्सेप्ट हो गया। अब और एक प्रश्न ये पूछना था कि जैसे कि जैनिज्म में जितने भी रिचुअल्स हैं उसमें कभी खमासना आता है, कभी उठक बैठक की क्रिया आती है, तो ये सब क्रिया भी हार्ट के लिए कुछ बेनिफिशियल है? या क्रिया डेफिनेटली, इफ यू जैसे खमासना देते हैं, जैसे मुझे जो भी याद है, मैं खमासना देता 3 खमासना देता था, बट ऑफ लेट मुझे पहचान मालूम हो गया कि पीपल डू लॉट ऑफ खमासना. इट्स नॉट 3, it's more. I have some relatives in my family on my in-law side. They do 400 to 500 khamashnas. तो whenever मैं उनके साथ डिस्कस करता हूँ, आप एक्सरसाइज नहीं करते, से यू कम एंड एक बार मुझे देखिए मैं क्या करते हूँ. सो उन्होंने 400-500 खमासना करते हैं एंड दे आर फिट. सो डेफिनेटली इज यूजफुल, there's no doubt. इनफैक्ट खमासना में जो योगा is a type of yoga only. So it's definitely beneficial, there's no doubt in it. So मेरा प्रश्न, sorry to intervene नील भाई, मेरा प्रश्न लक्ष्मण संघी जी से है, which is from my daughter who is a doctor. How do professionals follow Jain way of life? Is any different? प्रोफेशनल या अदरवाइज डिफरेंस तो कुछ नहीं है. आपको बेसिक चीजों को ही पकड़ के रखने का है. प्रोफेशनल को भी अपनी लाइफ में कुछ रेगुलेशन रखना है. अगर आप अननेसेसरली मानसिक तनाव लेके चलते हैं तो आपको यू हैव टू फाइंड कि थ्रू मेडिटेशन या अदर प्रैक्टिसेस उसको आप कम करो. आपके अंदर की जो फीलिंग्स है विज़ा वी अदर्स, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस में जब काम करते हैं, एज प्रोफेशनल काम करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज आ जाते हैं जो हमको परटर्ब करते हैं. तो उन चीजों को कंट्रोल कैसे करें हम, तो वो सब तो जैनिज्म का पार्ट है, बट प्रैक्टिस करना है उसको आपको. तो अगर धीमे धीमे आप करें तो ऑटोमेटिकली आपका भी एक लाइफ का रवैया अलग हो जाएगा एंड इट विल हेल्प यू डेफिनेटली. और आपकी काम करने की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी अगर आप वो प्रैक्टिस करेंगे. अगर इफ यू आर ऑल द टाइम वरीड एंड परटर्ब्ड एंड यू नो डिस्टर्ब, तो योर कैपेसिटी टू वर्क आल्सो गेट्स रिड्यूस्ड. नहीं तो वो आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगी. So, जैसे अभी जस्ट डॉक्टर ने बताया कि because of my profession I have no choice but to eat in the late in the night and I have to adjust. तो ये खाने के ठीक में एडजस्ट है, और कोई चीज में एडजस्ट करना पड़ता है because you are in the professional way of life जैनिज्म को? एडजस्ट तो अभी आपको इस तरह का ऐसा है ना कि अगर आपको ये लगता है कि कोई चीज बहुत ही जरूरी है, उसमें आप टाइमिंग्स को मेंटेन नहीं कर सकते हैं. अब डॉक्टर्स के लिए तो खास करके अगर उनको रात को जाके किसी को इमरजेंसी अटेंड करनी है और अगर वो भूखे प्यासे जाएंगे तो फिर वो खुद को तो तकलीफ देंगे, पेशेंट को भी तकलीफ दे सकते. तो इसलिए तो आपको जो अनुव्रत है श्रावकों के लिए और ग्रस्तों के लिए अलग है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटीज है. अब आपको विवेक, अपना विवेक यूज करना है कि कितनी फ्लेक्सिबिलिटी लेनी है. अल्टीमेटली इट इज ऑल इन यू. कोई आपको प्रिस्क्राइब या थोप नहीं सकता है, और वो थोपा हुआ तो फिर इट विल बी ओनली अ मैकेनिकल थिंग, उससे कोई रिजल्ट भी नहीं निकलने वाला है. तो मेरा एक प्रश्न डॉक्टर को भी है कि जब आपने खाने के प्रोफेशन में रात को खाना पड़ता है, तो मैंने कॉमन सेंस के हिसाब से ऑब्जर्व किया डॉक्टर की पशु पक्षी या कोई भी जीव, आपको मालूम रहेगा कि हमारे माताजी कहते थे कि हमें तो ध्रावे घरे आइया खावनो बंद करो पो. दैट इज अ टिपिकल डायलॉग. इफ वी ईट टुनाइट प्रोबेबली आई एम श्योर डॉक्टर विल नो कि हमें तो ध्रावे घरे आए, मींस पशु भी घर पे आ गया है, अभी तो खाना बंद कर दो आप. तो that particular dialogue has kept me. I keep observing birds or any type of animals. जैसे गाय है, आप रात को घास दो तो कभी नहीं खाएंगे, सुबह उठ के खाएंगे. तो why a human being has adopted
एंड एडवांस सेइंग नाइट को भी खाते हैं, 9 बजे भी खाते हैं, शादी में भी खाते हैं, डिनर को भी अपन 10 बजे जाते हैं। जहाँ की मैंने सब कंट्रीज में देखा, स्पेशली चाइना और दूसरी कंट्रीज में, खैर अभी चाइना के बारे में बात करना ठीक नहीं है, साउथ एशियन कंट्रीज में, जहाँ पे लोग 6:30-7 बजे, अगर आप रेस्टोरेंट में 7 बजे जाएंगे तो सब बोलेंगे रेस्टोरेंट इज क्लोज्ड, और इंडिया में अगर 7 बजे जाएंगे तो रेस्टोरेंट खुलता ही नहीं है। तो डॉक्टर से प्रश्न है कि क्या कारण है कि did we change the way of life and that is also affecting in the health, and why can't we see the natural things? जो पशु पक्षी कभी रात को नहीं खाते, कोई भी पक्षी देख लो, कोई भी डॉग देख लो, एक्सेप्शनल एक दो हो सकता है, ऐसा नहीं है, बट 98% ऑफ द अदर जीव कभी रात को नहीं खाते हैं। सनराइज और सनसेट उनका नेचुरल वे ऑफ लिविंग है। सो व्हाई इज ह्यूमन बीइंग हैज चेंज्ड टू दैट? डॉक्टर, डू यू हैव एनी लाइट ऑन दिस? या इसका कारण है वी स्पॉइल्ड इट, नोबडी एल्स। हमने चेंज किया है, इट्स फॉर आवर एडजस्टमेंट। Nobody told that you work up to late in the night. Nobody told to work 8 o'clock, run your outpatient for 9, especially from a doctor point of view. किसी ने नहीं बोला कि तुम रात को 8 बजे क्लिनिक चलाओ, 10 बजे क्लिनिक चलाओ। US nobody does it. इंडिया की systems ऐसे है, especially भारत देश। I've seen the systems are not good here. एक कहीं भी एक सिस्टम नहीं बना है किसी में, let it be hospital, let it be any reputed hospital. They are not made systems. So they are supposed to work overtime. And people are greedy, there's no doubt. When a greed comes only, then they overwork. And it's all our problem. It's not related to anybody else. And I accept that Americans, Europeans, they have their dinner at 6, 7 and close. There's no doubt. Indian systems are not good. And some of the doctors, they eat at 11 o'clock, 12 o'clock in the night. They run OPDs 10 o'clock in the night. I keep telling them. And it's very good. Again, youngsters, I know a lot of youngsters are there. If we have acidity, I'm telling you, if we had डकार आवे थोड़ा गैस आवे, आप रात 6 बजे पूरी कोई खजे मची छोड़ो, गैस नहीं बने तो डकार नहीं आएगा। It has been proven and it's very simple. My wife's classmate came to me here 10 years back, and when he came, he said, he's an ophthalmologist in Salem. He's some the local community guy, and he used to run OPD 10 o'clock, 11 o'clock. I told him, stop. And recently I met him, doctor, I still follow. After 6, I don't eat. And my gas problem is gone, I don't take tablets. So that's a simple thing. But people don't follow it. So doctor, my other question to Lakshman Sanghvi ji and you, which is the last question, then probably Neil Bhai will start his session, which everybody is eagerly waiting. The last question is, how do you advise to these IT professionals who work for years over in the night and come in the day and sleep? And IT is the highest revenue, probably we're doing 180 billion of exports, and everybody in the IT industry works in the night, and daytime they come and sleep. And because there is no other opportunity in the country like India, everybody works in the night. Most of the IT professional works in the night shift, which they come 8 o'clock and they come back home in the morning 4 o'clock, 5 o'clock. So what do you advise to them? Otherwise they can't survive. Our country is surviving today on the IT industry. लक्ष्मण जी आंसर करूं मैं? अभी ऐसा है कि अगर किसी को इस तरह का काम है ही कि उसको रात को ही काम करने का है, और तो मैं तो ये कहूंगा कि वो रमजान का सिस्टम फॉलो करे। पूरा दिन जो हम अदरवाइज रात को करते हैं उसको रिवर्स कर दें और उसी को उसी तरह से फॉलो करें, और तो क्या कह सकते हैं इसमें? Is it so easy? Because the sun rises here and you say when the sun rises you go to bed, and when the sun sets you say no, go to work. Problem है. No, this is very, very important concept. Now, most of the people, सबको मालूम है हार्ट अटैक किस कारण से आता है। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, ओबेसिटी, फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोरोना डिसीज। But now they have identified new risk factor that is called sleep hygiene. If a man doesn't sleep more than 7 to 8 hours per day, he is going to get more heart attacks. We have seen many number of IT professionals as young as 30 years, 35 years, work in the night, sleep in the daytime. The circadian rhythm, it is called circadian rhythm. If they don't follow the circadian rhythm in the night, they are more prone for heart attacks. And I'm telling you in this group, please make good sleep hygiene. It's called sleep hygiene, like how we do dental hygiene.
Sleep hygiene is a very important concept. Make sure you sleep 7 to 8 hours is a must sleep. In fact, in our family, everybody sleeps very well. But I have known a lot of families, they don't sleep well in the nights. And we have seen more heart attacks in those families and those groups. So all the IT professionals, very unfortunate, India, the priority is not health. India, the priority is survival. People are not having enough money to survive. That's why they have adopted to all these things. See, if you go to any country, they don't allow to land a flight after 11 o'clock in the night. Why? Because they say we don't want, come what may happen, we can pay more money, but India can't afford that. So that's why all flights, all we take off flights at 2 o'clock in the night, early morning, 3 o'clock. Why? This is the only country in the world. Go to Singapore, go to America, go to India. So the sleep hygiene, they knew long back, the sleep hygiene is more important. For them, living life is more important than making money. And here, unfortunately, people are not up to that standard. Still, people are struggling to make a living. That's why all these things are happening. And that's why the number of highest cardiovascular disease deaths in the world is India. It's a number one country in the world. I have many questions on this, especially on the COVID, because a lot of countries haven't done lockdown and they still have the same number of cases. But India has done completely lockdown, and we claim because of the lockdown. Anyway, we don't get into that because we'll be deviating. Thank you so much, लक्ष्मण जी, to 2-3 छोटे पॉइंट फ्लैग करना चाहता हूँ बोलिए आप लोगों के कंसिडरेशन के लिए। एक एस्पेक्ट है कि जैन धर्म में हम लोगों का जो पूजा पक्ष है काफी मजबूत हो गया और वो बहुत अच्छी बात है। कोई भी जैन नॉर्मली कुछ विधि वो सब बहुत मजबूत हो गया है, पर जो विचारात्मक जो एक भाव का पक्ष है उसको हमको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, खास करके उसका डिसेमिनेशन ऑफ दैट इंफॉर्मेशन, डिसेमिनेशन ऑफ दिस थिंग। इवन नील भाई ने जितने विधियां बताई उनके पीछे अल्टीमेटली एम तो उस भाव तक पहुंचना है, वही है। तो जो भाव है, जो हमारा विचार है, हमारी जो पूरी नॉलेज बेस है, उसको किस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा यंगर जनरेशन में ले जाएं, उसके लिए क्या एक ब्लूप्रिंट हो सकता है, इसके बारे में हमको सोचने की जरूरत है। बाहर बहुत अच्छा काम हो रहा है, अमेरिका वगैरह में। यू हैव दिस जैन इंटरनेशनल जैना, यू हैव दिस ई लाइब्रेरी, प्रवीण भाई शाह ने जो स्टार्ट किया उसका काफी काम हो रहा है। ऐसे बहुत सारे, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में जैनिज्म पे प्रोफेसर की चेयर्स हैं। इंडिया में कुछ सोच के उस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत। एक दूसरा जो है वो इश्यू है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, पर्यावरण और प्रकृति का। अभी उसके बहुत ज्यादा अवेयरनेस आ रही है। आपने सुना होगा, एक सबको मालूम होगा, स्वीडन की एक स्कूल गर्ल ग्रेटा थनबर्ग, उसने ईएनओ में जाके 17 साल की, अब आज की उम्र है, जो बोली होगी तो 16 साल की थी शायद, और उसने ईएनओ में जाके सबके सामने ऐसी स्पीच दी और उसने ये कहा कि आप लोग ये जो कर रहे हो सब डेवलपमेंट के नाम में, और सब आप जो खत्म कर रहे हो एनवायरनमेंट को, हाउ डेयर यू। उस लड़की ने, और उस लड़की की आवाज को सुनना पड़ा। जहां तक जैन धर्म का सवाल है, हमारे तो महावीर स्वामी ने, भगवान ने 2500 वर्ष के पहले कहा कि वनस्पतियों में, तो वनस्पतियों को, अच्छा गिरीश भाई ने बहुत अच्छी कल बातें की और उन्होंने ये बताया कि अनफॉर्चुनेटली कुछ दशकों से या कुछ समय से एक थोड़ा सा अलग सा ट्रेंड शुरू हो गया है, और वो ये है कि आप हर चीज में पाप को गिनने लगे हैं। पेड़ उगाने में या खेती करने में उन्होंने कितनी सुंदर बातें कही थी जो हमने बचपन में देखी है। हमारे घर में तो घर में ही 8-10 पशु रहते थे, एंड वी हैव ग्रोन विद दैट, बिकॉज हम लोगों के बिजनेस के साथ में खेती का भी काम था। उन्होंने बात की गोचर्स की, उन्होंने बात की तालाब की, उन्होंने बात की गौशालाओं की जो सेल्फ सस्टेन्ड हो सके, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये सब जैनिज्म में तो उसका पार्ट है। तो जैनिज्म में उसको एक क्रिएटिव वे में, इन अ वे वेयर इट गेट्स नोटिस्ड, शायद करने की जरूरत है। और एक लास्ट पॉइंट ये है कि कोई भी देश के लिए, कोई भी कम्युनिटी के लिए, कोई भी रिलीजन के लिए उसका इतिहास, पुरातत्व, उसकी कला, उसकी धरोहर, हेरिटेज एक गौरव का विषय होता है। वो जो भी उसको जानता है, देखता है, उसके अंदर एक
फीलिंग ऑफ प्राइड आती है। आप देखेंगे कि बाहर के देशों में उनकी छोटी छोटी चीजें उनको ऐसा प्रिजर्व करते हैं, ऐसा शोकेस करते हैं जैसे कि बहुत, हमारे पास में इतना कुछ है, बहुत कुछ है हमारे पास में। आप सोचिए कि इतने हेरिटेज जिनको कहा जा सकता है, ऐसे ऐसे सुंदर टेम्पल्स हैं गांव गांव में। मैं जिस एरिया और रमेश जी जिस एरिया से हम आते हैं, जैसे आप जो पहले पहले गुजरात के पाटन एम्पायर का पार्ट होता था आबू और ये क्षेत्र पूरा, और कुमारपाल राजा के समय में और उसके पहले भी इतने सारे जैन मंदिरों का निर्माण हुआ है। गांव गांव में इतने प्राचीन और सुंदर मंदिर है। अब सबको मेंटेन करना मुश्किल है क्योंकि गांव में लोग रहे नहीं, पर फिर भी जो जिनकी एक मॉन्यूमेंटल वैल्यू है, ये तो हमारा फर्ज बन जाता है कि हम उनको प्रिजर्व करें, उनके बारे में प्रॉपर नॉलेज करें, some sort of म्यूजियम में उनकी जो पब्लिसिटी हो, कुछ लाइव म्यूजियम टाइप हो, और जो बड़े मंदिर है उनके साथ में भी आप छोटे छोटे म्यूजियम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये अभी लक्ष्मण जी हमारे मुंबई में संकित ग्रुप है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। बहुत अच्छा हमारे जूनियर तीर्थों को अच्छी से प्रिजर्व करना, कैसे लोगों में अवेयरनेस बढ़ाना, और बहुत ही अच्छा काम चल रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ अगर इफ यू डोंट माइंड। एक पाटन के पास में एक तीर्थ है चारूक पार्श्वनाथ, बहुत सुंदर तीर्थ। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जब 4-5 साल पहले जब वहां गया तो एक पुराने आर्किटेक्चर का इतनी सुंदर, उसके ऊपर पेंटिंग्स, बाहर 2 बड़े एलिफेंट्स, अंदर जाओ तो उसके झरोखे इतने सुंदर, ऊपर उसके ऊपर तरह तरह की पुतलियां, मतलब एक अलग ही उसकी रचना। और मैं जब 2 साल पहले गया तो आप मानेंगे नहीं, वो झरोखे, वो पुतलियां, वो सब टूटे हुए इस तरह से पड़े थे जैसे कि मतलब उसकी मर्यादा भी नहीं रखी गई कि उनको इस तरह से रखा जाए। तो ये जो एक उस सोच को बढ़ाने की जरूरत है। एक बार जब मैं इंटैक्ट के साथ जुड़ा हुआ था तो कपिला वात्स्यायन जी, लेट कपिला वात्स्यायन जी, जो इंदिरा गांधी सेंटर फॉर नेशनल आर्ट एंड हेरिटेज की चेयरमैन थी, उन्होंने जब ये उनको दिखाया हमने मीरपुर का टेम्पल, वसंतगढ़ के फोर्ट के अंदर का टेम्पल, चंद्रावती का जो खंडर थे वो, तो इतनी प्रभावित हुई। उन्होंने कहा आपके पास ये सब कुछ है तो आप क्यों नहीं प्रिजर्व करते और शोकेस करते। तो इस दिशा में मुझे लगता है कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू या कुछ ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है। तो शायद थैंक यू सो मच लक्ष्मण जी, आपने बहुत अच्छी अच्छी इंसाइट्स हमें दी। और ये मीरपुर का टेम्पल आप जब कहते हो तो मुझे आंख बंद करती हुई मीरपुर का टेम्पल याद आ जाता है, क्योंकि वह टेम्पल भी मेरे दिल में बस चुका है। कालींद्री से कुछ ही डिस्टेंस के ऊपर है, और मेरा सौभाग्य था कि रमेश जी के साथ मुझे वहां जाने का मौका मिला था। थैंक यू सो मच राजेंद्र कुमार जी, डॉक्टर राजेंद्र।